جس کا شوہر باقاعدہ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مجازی خدا ہے یا اللہ، تو کدھر ہے؟ پھر اگر یہ مجازی خدا ہے میرے لیے مجھے یہ بتا۔ اس نے مجھے پھر چارجر کی تاروں سے مارا، میری ٹانگ صوفے کے پھٹیاں ٹوٹ گئی، اوپر لٹا کے دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے ٹانگ مروڑتا تھا ایسے۔ یہ سارے گھٹنے اور یہ سارے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا اور یہاں پہ یہ ایسے ایسے مارتا تھا، میں گر جاتی۔ کہتا کیا تھا؟ رات کو اس نے یہی تشدد کیا کہ میرے انگلیاں کھینچی ہیں، یہ نیل پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ کرتا کیا تھا ساری بات؟ اس نے بڑے لاکھوں روپے کھائے ہیں کہ تم چلو ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ بھائی کے ساتھ۔ مجھے شرم آ رہی لوگوں کے ساتھ، میں عزت دار لڑکی ہوں، میں کیسے بتاؤں؟ یہی کہتا تھا وہ ان کے پیسے معاف کرواؤ۔ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس کا شوہر باقاعدہ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کے عوض وہ باقاعدہ ہزاروں روپیہ اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنی عیاشی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب میری بیوی کے ساتھ آپ نے جو کرنا کرو، رات گزارو اور رات کو جتنے مرضی بندے ان کے ساتھ سلاؤ، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف پیسہ چاہیے، میں عیاشی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک ایک رات کے کتنے پیسے بٹورتا رہا ہے اور کون سے دوستوں کے آگے اپنی اس عزت کو جو ہے وہ نیلام کرتا رہا ہے، داغدار کرتا رہا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہنا سننے کے بعد دل پھٹ جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جسے غیرت کا محافظ بنایا ہو اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے۔ جی سر، وہ مجھے، میں بی ایس سی انجینئر ہوں، میں پڑھی لکھی خاتون ہوں، کما کے کھلا رہی ہوں اس کو، اور یہ لوگوں سے پیسے لے کے کہتا میں لاہوریا ہوں، میں 2 گھنٹے کے بعد کھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے پیسے کدھر جاتے ہیں۔ بائکس بھی نکلوا کے دیے ہیں اس کو، میں انسٹیٹیوشن چلا رہی ہوں، میں اس کو بھی پال رہی ہوں، اپنا بچہ بھی پال رہی ہوں، اور یہ پھر مجھے کہتا ہے 15 لاکھ روپے مریم نواز سے بھی نکلواؤ۔ رات کو اس نے یہی تشدد کیا کہ میرے انگلیاں کھینچی ہیں، میرے ناخن دیکھ سکتے ہیں آپ ہی۔ کس چیز سے تشدد کرتا رہا؟ سر چارجر کی تاروں سے مکے سینے میں مارتا تھا، گلے میں، یہ سارے نشان پڑے ہیں، یہ آپ کے سامنے ناخن، اور یہ جو ہے وہ یہ اس نے یہ دیکھیں یہ نیل پڑا ہوا ہے، دکھائیں ذرا سیدھا کر کے ہاتھ، یہ نیل پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ، یعنی یہ آپ کو تشدد کرتا رہا ہے۔ جی بہنا مجھے یہ بتائیں، کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ رات سلانے پر مجبور کرتا ہے آپ کا خاوند؟ لیکن جو خدا جو جانتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ خدا نے مجھے ابھی تک تو بچایا ہوا ہے، لیکن میں اپنے سر پہ بچی ہوں 3 دفعہ لوگ، میں تیسرا کیا کرتا تھا؟ کیا تھا؟ وہ مجھے کہتا تھا چلو کھانے پہ چلتے ہیں، خود باہر چلا جاتا تھا، شام کا ٹائم ہوتا تھا تو میں پھر موبائل کان کو لگا کے تھی، سگنل نہیں آ رہے، میں بھاگ جاتی تھی۔ میں پڑھی کرتا کیا تھا؟ کن کے پاس لے کے جاتا تھا؟ کیا پیسے لیتا تھا؟ کرتا کیا تھا؟ ساری بات اس نے بڑے لاکھوں روپے کھائے ہیں۔ کن سے کھاتا ہے؟ لوگوں سے کھاتا ہے، موبائل بھی لیتا ہے۔ کیا کہتا ہے ان کو؟ ان کو کہتا ہے کہ تم مجھے ادھار، پتہ نہیں کیسے لیتا ہے، یہ نہیں مجھے پتا کیونکہ میں نے قانون نے سنا، کہتا ہے ان کے پیسے دینے ہیں، تو نا ڈسپوزیبل بنا ان کو۔ کیا بنا؟ پتہ نہیں ڈسپوزیبل کہتا بنا، اس طرح کچھ کہتا ہے کہ ان کو نا ختم کر دے، ابھی سے رفع دفع کار، میں گھنٹے بعد آ رہا ہوں۔ اچھا، تو وہ آگے سے مجھے، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی نے ہاتھ نہیں ابھی تک لگایا۔ میں یہی کہتی تھی خدا کا نام ہے، میں اللہ کے آگے جان دینی ہے، قبر میں اکیلے جانا۔ بہنا مجھے یہ بتائیں، باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، راتیں گزارنے پر مجبور کیا جائے گا، کس طرح آپ کو لے کے جاتا اور کیا کرتا تھا؟ ان سے کیا پیسے بٹورتا تھا یا اس کا اپنی ذاتی خواہش ہے؟ یہ اب مجھے نہیں پتا اپنی ذاتی خواہش ہے، لیکن میرے سامنے اس نے یہی کہتا تھا، میں نے اس سے پیسے لیے ہیں ادھار، میں نے کہا کدھر لگائے ہیں، کہتا میں نے کہا ہور بڈی تو نہیں رکھی، میں یوز کیتے تاڑے تے لونا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں لگاتا ہے۔ پھر یہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ تم چلو، لیکن میں پھر کس پہ مجبور کرتا؟ کہ تم چلو ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ بھائی کے ساتھ۔ مجھے شرم آ رہی لوگوں کے ساتھ، میں عزت دار لڑکی ہوں، میں کیسے بتاؤں؟ یہی کہتا تھا وہ ان کے پیسے معاف کرواؤ۔ آپ کو کہتا تھا کہ رات گزارنے کے لیے اس بھائی کے ساتھ جاؤ؟ ہاں یہ کہتا تھا مجھے نہیں پتا، یہ تمہاری زبان میں اثر ہے، جو مرضی کرو، میں باہر سے چکر لگا کے آ رہا ہوں، خود آ جانا۔ پھر چھوڑ کے خود گھر چلا جاتا تھا، میں پیچھے آٹو پہ آتی تھی لوگوں سے منتیں کر کے پیسے لے کے کہ مجھے
घर जाना है। यानी वो दोस्त जिनके पास ही छोड़कर चला जाता था कि इसके साथ चाहे गलत कारी भी कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहता खुद वहां से भाग जाता था। हाँ खुद ये आगे पार्लर आपको उनके हवाले करके? हाँ जी, खुद इंस्टीट्यूट के आगे सो जाता और वो दरिंदे क्या करते थे आपके? वो दरिंदे जलील करने लगे थे, तो फिर मैं 3 दफा ऐसा वाकया हुआ, मैं तीनों दफा अल्लाह के हुक्म से बची हूँ। उनको मैंने कहा मैं ना बाहर देख के आती हूँ शाहिद किधर है, मैं अभी आई, मुझे पता था मेरा दुपट्टा नहीं था सर पे, उसने दुपट्टा खींचा, मैं बाहर भागी। मुझे एक औरत ने कहा कि ये यहाँ पे ये काम होता है, तुम क्या लेने आई हो? मैंने कहा मैं हम तो खाने पे आई, शाहिद के दोस्त है। वो कहती मैं तेरे बंदे नू रोज देखती हैं इत्थे। क्या करने जाते हो उधर? क्या बता सर जी, वो कहती मैं रोज देखती है तेरा बंदा वा। मैंने कहा हाँ। कहती तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा हाँ, मैं स्कूल चला रही, मैं एकेडमी पढ़ा रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ। तो आपने किसी को कोई दरखास्त नहीं दी, अपने भाइयों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताया नहीं कि मुझे रातों को गैर मर्दों के साथ सुलाने पर मजबूर कर रहा है मेरा खावत? ये सर कुरान उठा लेता था कि मैं तो इदा का है ही नहीं, मासूम बन जाता था, कुरान उठा कहता था मैं घर को हो जावा। फिर ये एक्सीडेंट भी इसके बड़े हुए। मैंने कहा ये अल्लाह तुम्हें मौके दे रहा है, जाने दो, खुदा का नाम है। ये फिर उनके सामने सच्चा हो जाता था। मुझे ये बताएं, पहली दफा जब इसने आपको लेके गया, इसने अपने दोस्त के साथ मुलाकात करवाई? जी, यहाँ पे वाहदत रोड नक्शा स्टॉप पे, एक मैं नाम नहीं लेना चाहती, बाबा है अमेरिका से आया। उसके कितने पैसे लिए थे? 80,000 रुपया उसने इसके ऊपर केस किया था, इसने चोरी की थी, उसकी दुकान पे जॉब करता था। फिर कहता इससे छुड़वाओ, इसकी मम्मा और ये दोनों कहते थे। यानी इसके पास 80,000 नहीं थे और इसके वजह आपको छोड़ाया जी मुझे पहले कि वो दरिंदे आपका जिस्म नोच सके? जी पहले मुझे तैयार करवाया करके, कहता खाने पे चलते हैं, चौधरी बड़ा अमीर बंदा है, वो लड़कियों के आगे ना पैसे ऐसे फेंकता। मैं वहां से छठी इसने काम किया। मैंने कहा लड़कियों के आगे क्यों? कहता हाँ हाँ हादी है ना, इसको भी देगा। मैंने कहा हमें जरूरत ही नहीं पैसों की। कहता खाना तो खाने चले, उसने खाना नहीं बनाया हुआ था, उसने जस्ट 2-3 केक, 1-2 बिस्किट चाय थी बस। नहीं तो आपने कहा नहीं कि तेरी गैरत मर गई, तू अपनी बुढ़ी अपनी इज्जत नू दागदार करना बाबे बुढ़े दे के सुटन लगा में? मैंने उसको कहा था, मैंने कहा था मैं तो तेरे से इतना करती हूँ, तू मेरे सर पे है, मैं ऐसी मेरे में ये हिम्मतें नहीं है। अब मैं पढ़ी लिखी बच्ची हूँ, कैसे गलत कारी करूं मैं? हाँ हिम्मत नहीं है। मैंने कहा मैं ना भी हो, मैं गैरतमंद हूँ, कब्र में जाना है। मैंने दूसरी दफा किसके पास लेके गया? दूसरी दफा शाहकोट लेके गया, शाहकोट ले गया। वो भी इसका जानने वाला था? वो मुझे नहीं पता, मैं उसको फर्स्ट टाइम देखा है। इसके फैसलाबाद में बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा। जो MQM के मैं बता रही हूँ। हाँ। उनके थ्रू ही लेके गया। तो वहां पे एक छप्पड़ था, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लेके गया, किन गलियों से। हाँ। फिर मैं बाहर निकले कि रिक्शे वाला, मैं कहा भाई पैसे किन्ने लाने, मैंने खुड़े आने छड़िया। वो कहता बाजी मैं 1500 लो। मैं कहा मैं तेन 2000 दूं, रक्षा पजा। फिर मैं आई तो मेरे सारे बच्चे, यानी वहां से भी आप जान बचा के निकली? जी हाँ, मुझे अल्लाह ने। वो लोग क्या करने वाले थे आपके साथ? वो 3 लोग थे और उन्होंने मुच्छों के बाल चढ़ा रहे थे। और औरत को पता चल जाता है, औरत बड़ी सेंसिबल होती है, औरत को पता चल जाता है। मरियम नवाज यही पीला कि इस दरिंदे से जान छुड़वाई जाए। यानी वहां पे वो तैयारी करके बैठे हुए थे? जी हाँ। कोई शराब भी रखी हुई थी, शराब भी पी थी? उन्होंने ना बूस्टर रखे हुए थे जो 90 रुपए का मिलता है। और पता मुझे कह रहा, पहले मुझे कहता है कि ये ना वो स्क्वाइश है। मैंने कहा नहीं शाहिद, ये स्क्वाइश नहीं है, ये बूस्टर है। फिर मुझे बाद में मैं अपनी दोस्त को बताया, मैंने कहा कहती मुझे तो इसका पता नहीं। फिर उसके हस्बैंड ने कहा इस तरह की शराबें होती हैं। आपको पिलाना चाहते थे? जी हाँ, मैंने जिंदगी, मेरे वालिद साहब ने मुझे इंजीनियर बनाया। उसने कहा बेटा कोई चीज किसी के बगैर पैकिंग के अलावा नहीं खानी। मैं नहीं खाती कहीं। आपने शराब नहीं पी और बच गई? बच गई मैं पूरा। पुराना खासा पी लेती तो क्या होता? उनका आपकी तो इज्जत को। वो पता क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे शाहिद शाहिद इधर आओ, ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर लगाओ। वो इस तरह बोल रहे थे। मैंने कहा ये तो पागल हुए पड़े, इन्होंने कोई नशा किया हुआ है। उनको मैंने कहा बैठो बैठो, मैं आई अभी शाहिद को देख के लेके आऊँ। मुझे बताएं तीसरी दफा किसके पास लेके गई है? तीसरी दफा ये रात को एक पिज्जा हट है वहां पे लेके गए। कहते ऑनलाइन जॉब ढूंढी है, चलो उसके पास। उसको कह रहे मुसलसल मेरी लाख रुपया तनख्वाह लगा देना, मैं तेरे साथ गड्डी च रहा करूंगा। वो बंदा कह रहा मैं तेन इधर इंस्टीट्यूट भी बना दूंगा, तुम्हें घर भी किराए पे ले दूंगा। शायद कहता हाँ हाँ। फिर वो कहता आना जाना लगा रहेगा। मैंने सर उसके उठ के फौरन बाहर आ गई। क्या मतलब आना जाना? ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या आना जाना। मैं यानी आपको इस्तेमाल किया जाना था? जी हाँ, बार बार आपको? जी हाँ। फिर इसने मेरा पर्सनल नंबर उसको दे के आया, वो बार बार कॉल करता था। फिर मैंने उसको कहा भाई मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाती हूँ, मैं पैगम्बरी पेशा करती हूँ, ना कि मैं कोई बगैरत हूँ, तुम अपना रास्ता बदलो, मैं ऐसी नहीं हूँ। कहता तेरा बंदा बगैरत था, वो ये कहता था।
फिर ये उससे कितने पैसे लिए थे? उससे नहीं पता, उससे उसने बड़ा कुछ खाया, रोज पिज्जा खाने जाता था। मुझे बताएं, जब आपको लगने लगा कि मेरा जिस्म जो है उसका सौदा कर रहा है मेरा खावन, ये मुझे अब लगा जो रात को इसने कहा। रात को जब इसने मजबूर किया है तो आपने मना किया कि मैं जिस्म फरोशी नहीं कर सकती? मैंने आज भी मना करती हूँ, कल भी, और करती रहूंगी जब तक मेरे दम में दम है। जब मेरा आपने मना किया तो आपका क्या हाल किया? इसने मुझे फिर चार्जर की तारों से मारा, मेरी टांग सोफे के फटियां टूट गई, ऊपर लटा के दीवार के साथ खड़ी करके टांग मरोड़ता था ऐसे। ये सारे घुटने और ये सारे मुंह पे थप्पड़ मारता था, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मारता था, मैं गिर जाती। कहता क्या था? कहता यही था, चलिए बाहर यार, मैनू हबस होने ही अंदर, बाहर चलिए। मुझे पता था ये बाहर लेके जाना चाहता है। रात को कौन कहता बीवी ने तैयार हो गए बाहर चलिए, मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं कैजुअल कपड़ों में। मुझे बताएं, जब आपके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, आप पे फटियां तोड़ी जा रही थी, चार्जर से आपके जिस्म के ऊपर जो है वो नील डाले जा रहे थे, तो आपसे क्या मुतालबा कर रहा था खामंद? आप कह रहा था कि बाहर चलो, बाहर निकलो, मैंने टच मोबाइल लेना है। मैंने कहा कि टच मैं ले दूंगी, अब फीसें आनी है, 10 तारीख का वादा किया था। मैंने कहा 3 टच लेके दिए हैं ना तुझे? कहता हाँ। मैंने कहा वो किधर गए? ले वो तो टूट गए, वो तो सही नहीं सी है। लैपटॉप भी लेके दिया, वो भी सेल कर लिया। फिर मैंने कहा मुतालबा क्या कर रहा था वो? था बाहर चलो। अब आप बाहर जाके क्या करना? के लोगों के साथ चलो, मैं टच खुद ही ले लूंगा, तू बस उठे पहुंच। यानी जिस्म फरोशी करो? जी हाँ, कि उधर तुम पहुंचो, मैं खुद ले लूंगा टच। यानी लोगों के साथ रात गुजारो, इसके ऊपर आप पे, आपके जिस्म के ऊपर तशद्दुद करता रहा। तशद्दुद कितनी देर तक तशद्दुद होता रहा? रात 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। जिनके घर में हम रह रहे हैं ना, वो भी सामने नहीं आए। वो कहते बड़ा मारा है उन्होंने। फिर जब 10 घंटे के बाद पुलिस पहुंची, उन्होंने सब कुछ बताया कि कुड़ी मार मार पागल की थी। इसने पानी भी रोड़ दिया। हमारे घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज जहेज मेरा लाहौर पड़ा हुआ है, वहां पे कूलर था, वो भी रोड़ दिया कि पानी भी ना पिए। कहता बोल ना, जब ये मार रहा था और ये आपको गलत कारी पर मजबूर कर रहा था, तो खुदा ताला से आप क्या दुआ मांग रही थी? मैंने कहा या अल्लाह, जिस तरह यूसुफ को जुलेखा से बचाया, दरवाजे खोल दिए, मुझे भी माफ कर दे या अल्लाह, मुझे भी माफ कर दे या अल्लाह। तू अच्छा है, लोगों को, मैं अच्छी थी, मुझे अच्छे लोगों से मिलवाता। मैंने क्या गलती कर ली? मैं तो शुरू से बच्चों को इल्म देती आई हूँ, इल्म बांट रही हूँ मैं। मेरे भाई भी इल्म बांटते हैं, वो भी ट्यूशन स्कूल पढ़ाते रहे, 5 वक्त के नमाजी है। मेरा वाला दागदार करने वाले शख्स को, जो आपकी इज्जत को दाग लगाना चाहता है, इसको बद्दुआएं दिया? मैंने कोई बदवा नहीं दी। मैंने कहा या अल्लाह, ये तेरा मामला है और तू बेहतर करने वाला है। मैंने बदवा दे दी, फिर तू बीच में से निकल जाना है। तू कर जो करना है, इसको इबरतनाक सजा दे, जो तू चाहता है वो कर दे। मरियम नवाज साहिबा से कोई अपील करना चाहेंगे? नाज़रीन, ये आंसू देखें, ये खातून की आंखों में आंसू है इस वक्त, और धाड़े मार मार के रोती है खातून जो है। ये इस बात की निशानी है कि मरियम नवाज साहिबा जिस रेड लाइन की बात करती है वो महफूज नहीं है। वो हाथ जोड़ जोड़ के मुतालबा कर रही है कि मुझे जिंदा गाड़ दो, लेकिन मेरी इज्जत पे दाग नहीं आना चाहिए, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी गैरत के साथ। अपने आप को कैंची मारने की कोशिश की कि मैं मर जाऊं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उसने कैंची पकड़ ली और उसने मुझे मुक्के मारे। मैंने कहा, मैं खुद लेके जा रहा था घसीट के। फिर उसने मोटरसाइकिल की तारे काट दी, तोड़ दिया कि तू हुण जावी ना, हुण बैठी रही थे। फिर मुझे इसने 2 घंटे अंदर पंखा बंद करके शीशे वाले कमरे में बंद रखा है। मैं पानी को रोती रही अंदर। फिर जो बाहर चौकीदार पहरे वाला है, उसको दरवाजा खटखड़ा, उसने दरवाजा फिर खोला बाहर से। बाजी मरियम नवाज साहिबा आपको देख रही हैं, क्या फरियाद जो है इन आंसुओं के साथ आप करना चाहती हैं? क्या होना चाहिए? इस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए और क्या मुतालबा कर रही? मेरा मुतालबा यही है मरियम नवाज साहिबा से कि जो हमारे जैसी इज्जतदार बच्चियां लोगों को इल्म बांटती हैं, तो मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि इस दरिंदे को इबरतनाक सजा दी जाए। मैंने इसकी बहुत इज्जत की थी, इसका पूजा की थी कि मेरा मियाँ, अल्लाह तू ना मुझे कहीं पे गुनाहगार कर देना। मैं इसके पाँव की तरफ सोती होती थी कि मेरा मियाँ की मजे, क्योंकि रब का दूसरा रूप है, ये मजाजी खुदा है। या अल्लाह, तू किधर है? फिर अगर ये मजाजी खुदा है मेरे लिए, मुझे ये बता। अगर फिर इसको क्यों मजाजी खुदा बनाया? तू तो प्रोटेक्ट करता है या अल्लाह, तू तो हर एक को मुंह में दाना भी देता है, इज्जत भी बचाता है। ये मुझसे भी छीनता है, मेरी इज्जत भी छीनता है। ये कैसा मजाजी खुदा है? क्या सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को? ये अब मरियम नवाज खुद सिलेक्ट करेंगी, मैंने उनके साथ। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये आंसू रंग ले आए, और जो इज्जतदार खवातीन है, जो अपनी इज्जत को बेचारी पता नहीं बचाने की आखिरी हद्दुल इम्कान कोशिश करती हैं, खुदा का वास्ता है, मैं अपने आला हुकाम से अपील करता हूँ कि उन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, चौकों और चुबारों में लटकाया जाए। उनके नेफे में पिस्तौल क्यों नहीं चलता?
کدھر ہے وہ سی سی ڈی کا ادارہ جس کو نیفے میں پستول چلانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ خاتون رو رہی ہے، دہائیاں دے رہی ہے کہ شاید کوئی خدا کا معجزہ ہو جائے، کوئی افسر جو ہے وہ آ کے میری عزت کو بچا لے۔ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا، ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔